So hello friends, we are back again to coordinate geometry. So this is the fourth episode of coordinate geometry. We'll do theory for first 10 minutes, whatever is left of it, and then we'll practice around 20 questions which will be in the form of a practice paper called practice paper 1. So without wasting any time, let us now continue with episode number 4 of coordinate geometry of 12th maths. So if you will like me to recap what we did in first 3 episodes, I'll just briefly summarize. We understood what are quadrants and octants. Perhaps in episode 1, the 4 quadrants I spoke as 4 octants. One of the comments I got that by mistake I spoke quadrants as octants. So when we have 2-dimensional geometry, we have 4 quadrants, and when we have 3-dimensional geometry, we have 8 octants. But anyway, that was a small issue. Then we did, main thing was we did distance formula. Using the distance formula, we found the perpendicular distance of the point from x-axis, y-axis, z-axis, xy plane, yz plane and zx plane. Then we did section formula for internal ratio and external ratio. We did midpoint formula, and we understood the concept of finding unknown ratio when the points are given to us. After that, we revised and carry forward the theory from vectors. तो vectors में जो हमने direction ratios and direction cosines पढ़े थे, उसको हमने implement किया line में. Line के direction ratios क्या होते हैं, direction cosines क्या होते हैं, और फिर उसको last में episode 3 के last 5 minutes में हमने direction ratios and direction cosines लिखे थे of x-axis, y-axis and z-axis. So if you will recall, what are the drs of x-axis? किसी को याद है what are the drs of x-axis? 1 0 0 and dc's भी 1 0 0 थे, और y-axis के थे 0 1 0 और z-axis के थे 0 0 1. So from here now we will start this class. All right. Now the next topic is angle between two lines. What is the topic? Please pay attention. Angle between two lines. Don't bother to write now. You listen to me, because there won't be that much time that you will be writing. So it's better to understand now. Angle between two lines. Suppose I have two lines given to me. एक लाइन के मेरे पास डियाज हैं A1, B1, C1, और दूसरी लाइन के डियाज हैं A2, B2 एंड C2, और मेरे को निकालना है एंगल बिटवीन द लाइंस. ऑलराइट. तो वो एंगल ये वाला भी हो सकता है और वो वाला ये वाला भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है. तो वेक्टर्स की तरह नहीं है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज यूनिक. एंगल बिटवीन टू लाइंस कैन बी सप्लीमेंट्री पेयर्स. कोई बच्चा कैलकुलेट करेगा, उसका 60 डिग्रीज भी आ सकता है, किसी बच्चे का 120 डिग्रीज भी आ सकता है, दोनों सही होंगे. अब इसके एंगल का फॉर्मूला क्या है? cos थीटा इज A1 A2 B1 B2 C1 C2 डिवाइडेड बाय, इसको हम शॉर्टकट में सिग्मा A1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं. A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और दूसरा अंडर रूट होगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस, ये आपका फॉर्मूला है विच यू हैव टू रिमेंबर. ये फॉर्मूला आया कहाँ से? कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला सब वेक्टर से ही आता है. आप याद करिए, अगर मैं इनको वेक्टर्स बना दूँ तो आपका A डॉट बी क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा. तो कॉस थीटा क्या होगा? A डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B. यही फॉर्मूला यहाँ आया है. आपको मालूम है कि अगर डी आर्स दिए हैं तो आप वेक्टर्स बना सकते हो. उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर्बिट्री होगा. अगर डी सीज दिए हैं तो भी आप वेक्टर बना सकते हो, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा. तो अगर ये लाइन है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग में वेक्टर बनाऊंगा तो A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप होगा. ऐसे इसका होगा. तो A और B क्या होता है? You multiply the coefficients of i's, j's and k's and add them. तो क्या होगा आपका? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये आ गया A डॉट बी. देखिए इधर, और ये मैग्नीट्यूड क्या होगा इस वेक्टर का, विच इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आई जे के स्क्वायर रूट ऑफ
sum of squares of coefficients of i's, j's and k's, तो वो होगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। तो ये कोई फॉर्मूला नया नहीं है, नया लग रहा है हमें, अदरवाइज ये वही फॉर्मूला है जो हमने वेक्टर्स में किया था। और इस फॉर्मूले से अच्छा ये वाला लगेगा अगर हम इस drs को dc's में कन्वर्ट कर लें, L1 M1 N1, और ये दिए भी होंगे आपको नहीं तो किसी क्वेश्चन में, और इसका L2 M2 N2 ये क्या है, dc's हैं। तो आप पता है आपका cos थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस नहीं हाँ M1 M2 प्लस N1 N2। ये फॉर्मूला देखने में छोटा लग रहा है, पता है क्यों, इससे क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर बनेगा ना, इससे भी यूनिट वेक्टर बनेगा। इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, तो डिनोमिनेटर में दोनों 1 हो जाएंगे, और a डॉट बी क्या होगा, वो तो यही होगा ना, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस A1। a डॉट बी होता क्या है, आप i's, j's, k's के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं ना, तो इससे जो वेक्टर बनेगा वो क्या होगा, आपको याद आ रहा है, L1 i कैप प्लस M1 j कैप प्लस N1 k कैप। ऑलराइट, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगल बिटवीन द वेक्टर। अब ये एंगल अगर 90 डिग्रीज होगा तो cos थीटा क्या होगा, cos 90 जीरो होता है, तो cos 90 आपका जीरो हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे दो फॉर्मूले बन जाएंगे जो हमारे पास पहले से भी थे, कि इफ टू लाइन्स आर एट राइट एंगल्स सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर drs और dc's इज जीरो। क्योंकि थीटा की जगह यहाँ 90 लिखेंगे, cos 90 जीरो होता है, तो आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफ लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2 देन A1, हमने यहाँ सिंबल्स क्या लिए हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज 0, और L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज 0। तो ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला बन गया, इफ द लाइन्स आर एट right angle, so this can be called as condition of condition for the lines to be at right angles। all right, so ये भी फॉर्मूला नया नहीं है, वेक्टर से कैरी फॉरवर्ड है, इसलिए बोलते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हमें वेक्टर्स के बाद पढ़ना चाहिए। सारी नॉलेज वेक्टर की कैरी फॉरवर्ड होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सो इफ यू हैव नॉट seen the previous episodes on vectors, it is advised that you read them or you go through them and then start doing your coordinate geometry. Things will be more clear to you. So now if lines are at right angles, do you remember the ASC golden rule we did in vectors? If two vectors are parallel, one of the vectors can be written as scalar multiple of other vector, और उसी को हमने फर्दर उसमें से डिराइव किया था। अगर दो वेक्टर्स i, j और k के फॉर्म में हैं और वो पैरेलल हैं, तो देन डिड वी मेक ए स्टेटमेंट दैट कोफिशिएंट्स ऑफ i's, j's एंड k's आर प्रोपोर्शनल। वही चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगी, तो आपका ये नेक्स्ट फॉर्मूला बन गया, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to, तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ if two lines are parallel, instead of saying coefficients of I, J and K, I will say if two lines are parallel, their drs are proportional. Their drs are or their direction cosines are proportional. So their drs are proportional or their direction cosines are proportional. All right, is it okay? And this direction cosines का रेशियो क्या होगा, अगर दो लाइनें पैरेलल होंगी तो इनका जो रेशियो होगा वो 1 हो जाएगा कट के, या -1 डिपेंडिंग अपॉन प्लस और माइनस। So if two lines are parallel, their drs are proportional or their dc's are proportional. If two lines are at right angle, sum of the product of their drs is 0. Sum of the product of their drs is 0 और sum of the product of their dc's is 0. तो अब आपके पास तीन फॉर्मूलेस हो गए,
एंगल बिटवीन द लाइंस के ये 2 हो गए। मैं ये वाला ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, देखने में छोटा लगता है लेकिन मेहनत तो उतनी ही लगेगी। और ये कंडीशन हो गई फॉर द लाइंस टू बी पैरेलल, और एक कंडीशन जो अब रब हो चुकी है, द कंडीशन फॉर द लाइंस टू बी एट राइट एंगल्स। अब एक लाइन और हमें स्पेशल पढ़नी है। हमने ना 3 लाइनें स्पेशल पढ़ी थी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के डी आर से 1 0 0 और डी सी भी थे 1 0 0। वाई एक्सिस के डी आर और डी सी से 0 1 0 और जेड एक्सिस के डी आर और डी सी से 0 0 1। नाउ एक और 4th लाइन आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, इफ ए लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो उसके डीसीज क्या होंगे। तो अभी थ्योरी में लिखेंगे और इसको बाद में हम डिराइव करेंगे। इफ ए लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू द coordinate axis, okay, then can I say alpha is equal to beta is equal to gamma? भाई डायरेक्शन एंगल्स बराबर होंगे ना। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से इक्वल एंगल्स बनाती है, और सिंबल्स क्या हैं, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाने का अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा, तो अल्फा बीटा गामा बराबर होंगे। सो देयरफॉर कैन आई से कि इनके कॉस भी बराबर होंगे। जब एंगल्स बराबर होंगे तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा भी बराबर होंगे। सो कैन आई से एल एम और एन भी बराबर होंगे। भाई एल एम एन तो सिंबल्स है ना, शॉर्टकट सिंबल्स हैं फॉर कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। क्या मेरे पास एक थ्योरम है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज 1। अगर मैं इन तीनों को लैम्डा मान लूँ और ब्रैकेट में लिख दूँ से का मतलब होता है कि ये वेरिएबल मैंने असाइन किया है, तो कैन आई से लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इज 1, 3 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, तो लैम्डा कितना हो गया, प्लस माइनस 1/√3। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, ऑल स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन ऑन अंडरस्टैंडिंग, don't try to copy right now. You will not be able to maintain the pace of what's happening in the class if you start writing. So you can pause your video or you can re-watch it and then make your theory. So please try to understand what's happening in the class right away without taking time to write. So you can write it down later. तो अब इसको हम यहाँ डाल देंगे। तो अगर मैं बोल सकता हूँ अब मैं इसको यहाँ मिटाता हूँ कि अगर एक लाइन इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस के, तो उसके डीसीज क्या होंगे, क्या होंगे डीसीज, 1/√3, 1/√3, 1/√3 और -1/√3। पहले मेरा मन नहीं था कि इसको मैं डिराइव कराऊंगा, लेकिन फिर मैंने आपको डिराइव करा दिया। हो गया ये 1/√3, 1/√3 ये आया ना, लैम्डा 1/√3। और डी आर्स क्या होंगे, अगर एक लाइन इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस के, तो डी आर्स क्या होंगे, आपको याद है डी आर्स थे इनका रेशियो। तो इनका रेशियो क्या होगा, 1:1:1, और इसका क्या होगा, इसका भी 1:1 होगा। बोलिए। तो अब आपके पास 4 स्पेशल लाइंस हो गई हैं, एक्स एक्सिस, सुनते जाइए, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के डी आर्स और डी सी थे 1 0 0, क्योंकि उसके डी सी थे 1 0 0, उसका रेशियो भी 1 0 0 ही होगा। वाई एक्सिस के थे 0 1 0, जेड एक्सिस के थे 0 0 1, ये डी आर्स और डी सी सेम थे। और 4th लाइन हो गई, व्हेन ए लाइन मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसके डी आर्स होंगे 1 1 1 और डी सी होंगे 1/√3, 1/√3, 1/√3 और -1/√3, -1/√3 और -1/√3। डी आर से भी डी सी निकालने का मैंने आपको मेथड दिया था पिछले एपिसोड नंबर 3 में। क्या था, अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको फिर से बताता हूँ। गिवन डी आर हाउ डू यू फाइंड द डी सी। सबसे पहले एक स्टेटमेंट बोली गई थी और उसको एक रेक्टेंगल में लिखा गया था, ऑलवेज हैंडल योर डी आर्स इन द सिंपलेस्ट रेशियो। तो अगर आपके डी आर्स कट के छोटे हो सकते तो काट के उनको छोटा करिए। तुम बोलोगे कट के छोटे होने का क्या मतलब है, जैसे आपके डी आर्स हैं 2 4 एंड 8, तो इनको काट के आप छोटा कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए 1 2 एंड 4।
तो अपने DRs को हमेशा काट काट के छोटा करके जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा करिए। फिर उन तीनों DRs को स्क्वायर करके ऐड करके उनका स्क्वायर रूट ले लीजिए और उसको हमने नाम दिया था मैजिक नंबर, याद है? तो एपिसोड नंबर 3 में अगर आप देखेंगे तो मैंने एक अपना वर्ड बनाया था मैजिक नंबर। मैजिक नंबर क्या होगा इसका? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 16 दैट इज रूट ऑफ 21। फिर DRs को इस मैजिक नंबर से डिवाइड कर दीजिए, आपके DCs आ जाएंगे। सो फर्स्ट यू हैव DRs, you convert them into simplest ratio, find the magic number which is the square root of sum of squares of DRs, फिर आप DRs को मैजिक नंबर से डिवाइड कर दीजिए। अब आप बताएंगे इसका मैजिक नंबर क्या होगा? इसका मैजिक नंबर √3 होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तो √3 आएगा। आप DRs को √3 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आएंगे DCs? 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3। ऑलराइट, नाउ लास्ट टॉपिक है, देन आई स्टार्ट माई असाइनमेंट, और ये भी वेक्टर से कैरी फॉरवर्ड है। तो सारी थ्योरी जो अभी हमने इसमें की है, बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ऑल द थ्योरी वाज डिराइव्ड फ्रॉम द वेक्टर्स। If DRs are given and DCs is given, how do you reconstruct the vector of the line? So आपका टाइटल क्या होगा थ्योरी का? हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए वेक्टर। ये पहले हो चुका है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए वेक्टर गिवन इट्स डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन्स। ठीक है, हम दो कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे हम DRs दे देते हैं ABC, यहाँ पे हम DC दे देते हैं LMN और बोलते हैं इनका वेक्टर बनाइए। तो वेक्टर से हम DRs और DCs निकालते हैं। अब रिवर्स में हम DRs से और DC से वेक्टर बना रहे हैं। तो आपको मालूम है इसका वेक्टर क्या होगा? ओके, इसको ना अब ये और ये A कंफ्यूज करेगा, तो हम इसको नाम दे देते हैं कुछ और, वेक्टर R दे देते हैं। तो वो होगा AI प्लस BJ प्लस CK, और इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी होगा आर्बिट्री। तो मैग्नीट्यूड इसका कोई स्पेसिफिक आप नहीं बोलेंगे कि उससे ये नॉलेज आपको मिल रही है, क्योंकि DRs को कोई बच्चा रेशियो चेंज नहीं करेगा। जैसे अभी एक एग्जांपल ये था 2 4 8, तो उसके यहाँ 2 4 और 8 आएगा। कोई काट के छोटा कर लेगा तो उसका यहाँ 1 2 और 4 आएगा, तो मैग्नीट्यूड तो वेरी हो जाएगा। और DC से जो बनेगा ना वो यूनिट वेक्टर बनेगा, LI प्लस MJ प्लस NK। सो दैट फिनिशेस द थ्योरी ऑफ योर बेसिक्स ऑफ योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। द नेक्स्ट थ्योरी विल बी ऑन straight lines and after that planes, but that we are going to skip. So now we are going to do an assignment. So I have collected a question, 20 questions for you. You can see it on the screen here, and we will call it as PP1. PP1 stands for practice paper 1. So we'll start with practice paper 1. I'll try to give it as a link in the video, but somehow this channel is new, that link facility is not yet open by YouTube. So when I was doing vectors, I did practice paper 1 in episode number 6, 7, 8, 9 and 10, which were recorded, but when we were trying to upload it, I could not give it as a link in the description. So what we are going to do is, in that episode when it will be aired, somebody will put their comments or I'll write the comment. In that comment, I'll put this as a link, and then I'll pin that comment on the top. So when any student opens that episode, he will see the first comment. In that comment, the link to the assignment will be there. It won't be there in the main description till YouTube allows me to do that. So in episode number 5, 6, 7, 8, 9, 5 is the theory, 6, 7, 8, 9, 10. There are 5 episodes on the solution of practice paper 1 in vectors. So there we'll pin it up in the first comment, this link. So right now let us start without wasting any more time, practice paper 1 of coordinate geometry. So if you are listening and making a note of the theory, all these 20 questions you will find them very easy. And as we do it, your theory will become more clear to you. So we'll call it as PP1. PP1 means practice paper 1, question number 1.
आपको इसमें दो पार्ट्स दिए हैं, इसमें एक वेक्टर दिया है। ये तो एक्चुअली देखा जाए तो वेक्टर का क्वेश्चन है और इस वेक्टर का कोई नाम नहीं है। पहले आप ध्यान से सुनेंगे तो ये वेक्टर आर है, ठीक है। अब आपको इसके डायरेक्शन को साइंस निकालने, सो दिस I can very well skip in the class for those students who have seen the vectors episodes, but those who have not, let's find out the direction cosines. अब इसके दो मेथड्स हैं, मैं डी आर्स निकाल के डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकता हूँ या डायरेक्टली डायरेक्शन कोसाइंस। कैसे आप करते हैं आपको याद है, इस वेक्टर का पहले आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो दिस क्वेश्चन इज एसेंशियली ऑफ वेक्टर बट वी आर डूइंग इट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर में दिया हुआ है। तो इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया 4 + 1 + 1 √6। फिर आप वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे और इसको अलग अलग भी कर देंगे साथ साथ। ये लीजिए, अब ये क्या बन गया आपका यूनिट वेक्टर। जब ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा, जब ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा तो आई, जे और के कोफिशिएंट्स होंगे इसके डायरेक्शन कोसाइंस। तो इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस हो गए 2/√6, 1/√6 एंड -1/√6। अगर आप इनको स्क्वायर करके ऐड करोगे, फिर से मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज पे अटेंशन ऑन व्हाट आई एम टीचिंग, डोंट बी मोर फोकस्ड ऑन राइटिंग। आप इसको लिख सकते हैं ना बाद में, हु इज स्टॉपिंग यू, यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट इट। राइट नाउ यू लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग और यू वॉच इट अगेन एंड देन मेक द नोट्स। और उस समय भी आप ना देख के मत लिखो, आप अभी आप सुनिए, समझिए और उसके बाद इसको खुद करिए। अगर आप उसमें अटकते हैं तो फिर देखिए, आप इनको स्क्वायर करके ऐड करोगे, देखो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 + 1 6 और नीचे भी √6 का स्क्वायर 6। तो L² + M² + N² विल बी व्हाट 1। और अगर आपको डी आर्स निकालने हैं जो कि मांगे नहीं है तो आप इनका रेशियो ले लीजिए, √6 कट जाएगा तो 2, 1 एंड -1। वो यहाँ से भी निकल रहा था 2, 1 एंड -1। लेकिन कभी कभी ये और ये सेम नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हम डी आर्स को रेशियो है ना, हम रेशियो चेंज कर सकते हैं। इसको जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4, 2 एंड -2 हो जाएगा, वो भी करेक्ट माना जाएगा, 4, 2 एंड -2। लेकिन जिस भी डी आर से डी सी निकालेंगे वो हमेशा सेम आएंगे, क्योंकि डी सी रेशियोज नहीं है, डी आर्स रेशियोज है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, इसमें भी वेक्टर का नाम नहीं दिया है, ऑलराइट। तो हम अपनी मर्जी से नाम दे देते हैं 3i + 4k। इवन इफ यू डोंट हैव द असाइनमेंट विद यू, तो मैं क्वेश्चन तो ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ ना, आप इससे समझ सकते हैं, क्योंकि सबके पास प्रिंटिंग फैसिलिटी नहीं होगी कि आप लिंक में से उसको डाउनलोड करके प्रिंट ले सकें, लेकिन आप उसको कॉपी कर सकते हैं अपने एक्सरसाइज बुक में पूरे असाइनमेंट को। अब इसको आप क्या करेंगे, इसमें एक मिसिंग है ना, उसको आप सप्लाई कर दीजिए। जे कॉम्पोनेंट मिसिंग है, कॉम्पोनेंट ऑन वाई एक्सिस। तो आप इस क्वेश्चन को आप खुद कर सकते हैं, ऑलराइट। चलिए पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। What will be the magnitude of this vector? Square root of 3 square, 0 square and 4 square का sum is the square root of sum of squares of coefficients of i's, j's and k's। अभी कितना आ रहा है 9 + 16, 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, ये 25 हो गया। और इसको आपको पिछली क्लास में भी बताया था, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज नॉट +-5, इट इज ओनली +5। आप इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो व्हाट विल बी द यूनिट वेक्टर, और उसको अलग अलग भी कर दीजिए। 3/5 आई कैप, ये 5 इसके नीचे, और 0.5 कितना होता है सबको पता है, 0.5 0 होता है, तो ये 0j हो जाएगा और लास्ट वाला हो जाएगा 4/5 के। जब आपका वेक्टर यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, फिर से वही बात, भाई यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कैसे होगा, अरे ये तो बहुत ही साधारण सी बात है। किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना हो तो आप उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दीजिए, इट इज एज सिंपल एज दैट। और जब वो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा तो आई, जे और के कोफिशिएंट्स के डायरेक्शन कोसाइन। तो आपका कॉस अल्फा क्या होगा, पहला डायरेक्शन कोसाइन 3/5 कॉस बीटा
0 एंड कॉस गामा 4/5 और इनके सिंबल्स क्या हैं L M N। अब इसका तो मैं कुछ उखाड़ नहीं सकता। जो बच्चे जेई के लिए पढ़ रहे हैं उनको पता है कि ये एंगल क्या बनेगा, क्योंकि एक बहुत फेमस 90 डिग्रीज का ट्राइंगल होता है जिसका हाइपोटेन्यूज होता है 5 और अदर 2 साइड्स होते हैं 3 एंड 4। तो उसमें से आपके ये निकलते हैं 3/5 एंड 4/5 ना। ऑलराइट, नाउ यू सी हियर, अभी हमें 12 के बच्चों को इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो व्हाट विल बी योर अल्फा अगर आपसे मांगा है, वैसे तो मांगा नहीं, आपका आंसर आ गया। आपको क्या मांगा था इस क्वेश्चन में, डायरेक्शन कोसाइन, सो ये आ गया। और अगर ds निकालने तो इनका रेशियो ले लो, 5 नीचे से कट जाएगा तो क्या आएगा 3 0 4, जो मेरे को यहाँ से भी मिल रहा था 3 0 एंड 4। मैं इस क्वेश्चन को कुछ आगे करा रहा हूँ जस्ट सीखने के लिए। अगर आप इसका डायरेक्शन एंगल निकालेंगे विद एक्स एक्सिस तो वो क्या होगा कॉस इनवर्स 3/5 और z एक्सिस के साथ होगा कॉस इनवर्स 4/5। बीटा क्या होगा, कोई बताएगा मेरे को, बीटा क्या होगा, π/2 होगा क्या, बीटा π/2 होगा ना, क्योंकि cos 90 कितना होता है, cos 0 1 होता है और cos 90 को रेडियन में π/2 भी बोलते हैं। तो अगर ये वाला DC जो बीच वाला है अगर वो 0 हो गया तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्रीज हो गया। और ये एंगल किस एक्सिस के साथ बन रहा है, y एक्सिस के साथ बन रहा है। तो अगर ये एंगल 90 आ रहा है, ये क्वेश्चन में नहीं है, ये मैं थ्योरी की तरह आपको करा रहा हूं, अगर ये एंगल 90 आ रहा है तो व्हाट इज द इन्फ्रेंस यू कैन ड्रॉ। अंग्रेजी में या हिंदी में आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि दिस वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज विद y एक्सिस। तो इससे बड़ी अच्छी बात निकलेगी ना। सो दिस वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ π/2 with y एक्सिस। अगर कोई वेक्टर y एक्सिस पे 90 डिग्रीज बना रहा है तो क्या कोई फर्दर इंफॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं हम, कोशिश करो, सोचो कि अगर कोई वेक्टर y एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो आप फर्दर क्या एक और लाइन बोल सकते हैं। आप कोशिश करेंगे, मैं बताऊं आपको यहां से मिटा के। ऐसा करता हूं मैं पहले आपके लिए ना एक डायग्राम बना देता हूं और फिर आप मेरे को बताना, ठीक है। ये बनाया x, ये बनाया z और ये बनाया y। ये y एक्सिस, ये x, ये z। x एक्सिस को चलो कैपिटल X लिख देते हैं। ये कौन सा प्लेन है, ये x z प्लेन है। और जो मेरा वेक्टर है वो किसके परपेंडिकुलर है, y एक्सिस के। तो अब आपको आंख से दिख रहा है, it means the vector is parallel to xz plane. Any line, any vector perpendicular to y axis will be automatically parallel to xz plane. ये सब क्वेश्चन में नहीं पूछा था, मैंने अपनी मर्जी से आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उस क्वेश्चन में से एक्सट्रैक्ट किया है। सो नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 2. So what you can do is you can pause and write it, or you can watch second time, and I'll prefer that you don't watch second time and then write, you do it yourself. If you face some problem then you watch it. Okay, now we'll do question number 2. The direction ratios of the line are 1, -2 and 2. You have to find the direction cosines. Now this question can't be even 1 mark. एक नंबर की भी औकात नहीं है इस क्वेश्चन की, आधा नंबर इसके लिए बहुत है। तो अभी कुछ बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं, तुम में से कोई इसको करना चाहेगा ब्लैक बोर्ड पे? एनीबडी विल लाइक टू डू इट ऑन द ब्लैक बोर्ड? नहीं, बताना तो अलग बात है, बता दो तुम दोगे, कर भी सकते हो, उसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। मानवेंद्र वुड लाइक टू डू इट, कम मानवेंद्र आइए। सो वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज ए गुड स्टूडेंट, सो ही विल लाइक टू डू दिस क्वेश्चन ऑन द ब्लैक बोर्ड. So you are given the DRs, you have to find the DCs. So he is coming with a mask. The children are more careful than the teachers. So let us see what he does. So first we'll find the magic number. Yes, so he is very right. He is saying first we'll find the magic number. That's good. He is adopting the terminology. जो हमने कोड वर्ड्स अपने बना रहे हैं या जो एक स्पेशल शब्द हम अपने थॉट प्रोसेस को दे रहे हैं उसको ये अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इसने बोला पहले हम एक मैजिक नंबर लिखेंगे,
ठीक है, उसके आगे भी इक्वल टू लिख लो पहली लाइन में। और एग्जाम में हम क्या लिखेंगे इसके आगे, क्योंकि एग्जाम में तो हम शब्द नहीं यूज़ करेंगे मैजिक नंबर, तो आप खाली छोड़ दो, कोई बात नहीं। ऑलराइट, तो वो हमारा 9 आके 3 हो गया। तो अब हमारा मैजिक नंबर हो गया 3। अब हम वेट करते हैं ये आगे डायरेक्शन को साइंस कैसे निकालेगा। चलिए मानवेंद्र जी आगे डायरेक्शन को साइंस निकालेंगे। आप इधर आ जाओ, वो हो सकता है स्क्रीन के बाहर निकल जाए, अभी हो सकता है मैं भी स्क्रीन के बाहर ही होऊंगा। यस, 1 अपॉन मैजिक नंबर। पहले डी को मैजिक नंबर से डिवाइड किया, पहला DC मिल गया। अब ये दूसरे डी को बिल्कुल फर्स्ट क्लास, तो इसके ये सारे तीनों डी से DCs आ गए। और इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि वेरी गुड मारवेंद्र। सो इसको आप स्क्वायर करके जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा 9 हो जाएगा। यू कैन क्लैप इफ़ यू वांट टू, देयर इज नोबडी स्टॉपिंग यू फ्रॉम क्लैपिंग। तो ये एक DR से DCs निकाला। क्वेश्चन बहुत आसान था। जो मेरे को पसंद आया कि इसने ये मैजिक नंबर शब्द यूज़ किया, उससे ना ये ऐसे फनी नेम्स देने से क्या फ़ायदा होता है, हम उनको जल्दी रिकॉल कर सकते हैं। एनीथिंग विच हैपन्स विच इज़ नॉट नॉर्मल इन आवर लाइफ, वो हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है। कभी तुम सड़क पे से जा रहे हो, बहुत सारा ट्रैफिक निकल रहा है, आपको कहाँ याद रहेगा, लेकिन अगर 2 तुम लोगों को लड़ते हुए देख लो ना, रोड रेज, तो तुम्हें वो लोग याद रहेंगे काफ़ी दिनों तक जो लड़ रहे थे, क्योंकि वो थोड़ा सा अनयूजुअल था। तो ये चीज़ें थोड़ी सी अनयूजुअल है। मैजिक नंबर, अभी मैथ्स का तो कोई वर्ड नहीं है ना, तो ऐसे हमने बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारे स्टेटमेंट्स बनाई हुए हैं। इंटीग्रेशन में तो खासकर हमने बहुत कुछ ऐसा बनाया था। फायर, LGB, if we don't have it we get it, MGB, spirit of MGB. So we made lot of theories and gave them funny names. So we'll end the episode here, and then in episode number 5 we'll continue from question number 3, coordinate geometry, class 12 maths. So see you now for today.